This is the last topic of rational number. Okay. Today's class, Yes. we will learn about how to find a rational number between two rational number. Okay. Jyoti Kumari, tell me, you have sent your math exercise? Jyoti, Yes, sir. you have sent your math exercise, okay? Yes, sir. Okay, you are right. Megha, maybe Megha. Okay. Megha, tell me, what is the additive inverse of -6 upon -5? Megha, tell me, what is the additive inverse of -6 upon -5? 5/6. 5/6. But in your notebook, what is written? Have you seen it? No, sir, 6/5. In your notebook, what is written? आंसर करते हो किसी दूसरे का? No, sir. देखो, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि negative of anything. Okay, additive inverse means negative of anything. Suppose -6 upon 5, -5, it can be written in the form of 6 upon 5 or not, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या हुआ 6 upon 5 होगा. And what is the additive inverse of 6 upon 5? That is -6/5. Am I right or not, Jyoti Kumari? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Megha, you have any doubt? In your answer, you have written 6/5. This is not right. Yes, sir. This is not the additive inverse of -6 upon -5. How, sir? Because we also learn about, 1 minute. We also learned about how to divide two negative integer. Division of two negative integer gives the result as positive integer. Okay, means -6 by -5. What is actually this is? This can be written in the form of -6 divided by -5. Am I right or not? Yes. And the division of two negative integer always gives you result as a positive integer. Sorry, positive integer, or may not be a positive integer. Okay, what will the result here? Result will be 6 upon 5. Now in the question it is asked that you have to find the additive inverse of -6 upon -5. Now actually he is asking you the additive inverse of 6 upon 5. Am I right or not? Yes, sir. Bharti, Yes, sir. am I right? Yes, sir. So what is the additive inverse of 6 upon 5? Additive inverse means, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? निगेटिव किसी भी चीज का. और 6 upon 5 का नेगेटिव क्या होगा? -6 upon 5. Is it clear?
इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, सब अपना वीडियो ऑन करो। इज इट क्लियर? क्या नाम है? मेघा कुमारी। Yes, sir. समझ में आया बेटा कहाँ गलती की थी? Yes, sir. ओके, अब से ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? Yes. चलो, shall I start? Yes, sir. Okay. Today we will learn or we will study about how to find rational number between two given rational number. अच्छा, one thing more, tell me anyone, 0, is it rational number or not? Yes, sir. है. Can anyone explain? 0 upon 1. 0 upon 1, what will the result? Zero. What will be the result? 0. 0. 1 upon 0, what will the result? 1. 0. Huh? 0. रिजल्ट क्या होगा? कौन बोल रहा है 0? देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 0 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 0? हाँ जी पंडित जी, पंडित जी Yes, sir. बताइए, Yes, sir. बताइए 1 अपॉन 0 क्या होगा? Sir, 1 होगा. 1 होगा। हाँ अर्नब क्या होगा? अर्नब किशोर, हेलो हाँ बेटा क्या होगा 1 अपॉन 0? आगे तो इहे काम करे छी यहाँ से बताओ ना। आशीष 1 अपॉन 0 क्या होगा? जय ठाकुर, Sir, भारती 1. कुमारी, अनीता कुमारी, मेघा, टेल मी। 1. 1. 1. अच्छा 1 मतलब भेड़ Sir, चाल, 1 ही एक बोला होगा. 1 सब बोला 1 नहीं बेटा। ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग, किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो, क्या मैंने बोला? किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो, 1 नहीं होगा बेटा। अगर किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? 1 नहीं होता है, ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इट्स क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. बिकॉज Yes, sir. व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? 1 को डिवाइड करो 0 से। सपोज करो, देखो 4 अपॉन 2, इसका मतलब क्या है? 4 को डिवाइड करें 2 से। मतलब क्या? कोई चीज 4 डिविजिबल बाय मानो ये 4 यूनिट है, ठीक है? ये कितना यूनिट है बेटा? 4 यूनिट। इसको क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2. 2 पार्ट में। यही तो इसका मतलब है। तो फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट ये होगा। एम आई राइट और नॉट? हाँ पंडित जी, मैं सही बोला हूं? ये 4/2 का मतलब क्या है? जो 4 है ठीक उसको हम लोग 2 लाइव पार्ट में, चैपल इक्वल सुनना पार्ट है। में डिवाइड कर रहे हैं। यही तो इसका मतलब है, Yes, sir. ठीक है? अब 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होगा? सपोज ये 1 यूनिट है, हम तो पीवे नहीं करते, इस होकर के जा रहा था हमने रिश्ता का पंडित जी आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? बेटा मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ, तुम ऊपर देख रहे हो। हमेशा भगवान को ही क्यों याद करते हो? कभी कभी गुरु को याद कर लो, ठीक है? इसका मतलब sir, 1 को 0 मतलब क्या? 1 को हम लोग 0 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब इसमें कितना पार्ट फॉर्म करेगा? इनफाइनाइट, है कि नहीं? अगर हम लोग 1 को 0 पार्ट में डिवाइड करें तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? इनफाइनाइट पार्ट में। समझ में आ रही है? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यस सर। अपॉन 0 इसका मतलब क्या है? 2 को हम लोग इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया? यस है सर। कि नहीं? अरे इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, 1 इंटू 0, रिजल्ट क्या होगा? 0। 0। ठीक है, जीरो। सर आशीष, चलो ठीक है। 0 इसका तो क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0/1, लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा? इस 0 को यहां रहने दो, इसको 1 को इसके नीचे ले आओ, क्या होगा? 0, 0/1 क्या होगा? 0 हुआ। हाँ जी, अरे बोला करो ना हाँ या नहीं में। यस सर। हुआ ना? इसमें क्या होता है, जब भी देखो 0/1 किसके बराबर है? 0 के। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग 1/0 करें इसका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, या 2/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 या 2 को किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट 0 पार्ट में वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करो तो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। इसलिए जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे किसको, व्हेन वी डिफाइन रैशनल नंबर, when we define a rational number, what definition is given to rational number? There is no any restriction on the numerator. No restriction on the numerator. Numerator means, for example, P by Q, where P is the numerator. Am I right or not? Yes sir. And Q is denominator. Denominator. Yes sir. When I define rational number, P by Q is said to be a rational number if P and Q is an integer. When I say that P and Q is an integer, that means P can be a positive integer, can be negative integer, can be zero integer. There is only a restriction on the denominator. And what that restriction is? The restriction is that Q is never equal to 0. You remember or not? क्या सर एक बार फिर से बताइए। What I said? When I defined rational number, what definition Yes. is given to rational number? A number in the form of P by Q. Okay? Where P and Q are integer. Okay? P and Q both are integer. And when I said integer, that means it may be positive integer, it may be negative integer, it may be zero integer, because these are the kind of integer. But one restriction is applied on the denominator. On the denominator, one restriction is applied. What is that restriction? The restriction is that Q is never equal to 0. If a number in the form of P by Q and Q is equal to 0, then P by Q is not a rational number. हाँ अविनाश, समझ में आया? यस सर। मैंने क्या बोला, अगर जब हम लोग डिफाइन करते हैं कि P by Q एक रैशनल नंबर है, हम लोग क्या बोलते हैं? क्या न्यूमरेटर में जो P है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं? नो सर। P कुछ भी हो सकता है,
पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है। हमने रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाया है? क्यू के ऊपर। सर क्यों यस क्यू सर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो रिस्ट्रिक्शन है ना। यस सर रिस्ट्रिक्शन तो सिर्फ यही है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्यू इज Yes, नॉट sir. इक्वल टू जीरो क्यों, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? Why we impose this restriction on the definition of rational number? हमने किसी रैशनल नंबर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? क्योंकि we all know that when we divide any number by zero, the result is not defined. Then how can it be a rational number? Something which is not defined, how that number can be a rational number? Am I right? यस सर What I said, there is restriction on denominator. रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? डिनोमिनेटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। कैसा रिस्ट्रिक्शन है? कि Q जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। मान लो कि Q कोई रिस्ट्रिक्शन डिनोमिनेटर के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा? 1/0 होगा, ये होगा ना? बोलो ना। Yes. अरे Yes. 1/0 ही होगा ना। अगर हम Q Yes, के sir. ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, मतलब Q में भी इक्वल टू जीरो। जब हम Q के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं तो 1/0 हो गया। इस टर्म इज Yes. डिफाइंड। ये क्या डिफाइन ही नहीं है? Yes. जब कोई चीज डिफाइन ही नहीं है तो रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी से दैट दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज इंटीजर, दिस इज होल नंबर? You understand it? Yes, sir. Okay, that's why we impose a restriction on the denominator. And what restriction we imposed? We imposed that Q is not equal to zero. If Q is equal to zero, that means the result may be in the form of 2/0. And what is this? Not defined. And if something is not defined, how can we say that this is a rational number, this is a irrational number, this is anything else? You understand it or not? Yes. समझ में आया कि नहीं? आ रहा आ रहा है? यस सर हाँ जी, किसी को समझ में आया पूछ सकती हो। ज्योति कुमारी समझ में आया? Yes, sir. अविनाश, यस आशीष, सर आ गया समझ में आशीष, मेघा, वारती, जय ठाकुर, Yes, sir. अर्नब किशोर, अनीता कुमारी, समझ में आया? हाँ जी, पार्टिसिपेट करो। सब म्यूट करके क्यों बैठा हुआ? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? Yes, sir. यस सर अब हम आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. जब हम बात करते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम लोग 3 मेथड को पढ़ेंगे। कितना मेथड को पढ़ेंगे? 3 मेथड को। ठीक है, कितने मेथड को पढ़ेंगे? 3 मेथड को। 3. ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या होगा? मीन मेथड। क्या होगा बेटा? फर्स्ट मेथड मीन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा? कुछ भी होगा, मान लेते हैं, पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, और एक तीसरा मेथड होगा जिसमें क्या होता है, हम लोग LCM. डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस निकाल के करेंगे, डिफरेंस निकाल के। ठीक है, 3 मेथड से विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे किस तरह दो रैशनल नंबर के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर लाइज कर सकते हैं, उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीन मेथड। मीन में होता क्या? फॉर एग्जांपल 2 and 3, 2 and 3 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ जी,
पंडित जी, tell me, 2 is a rational number or not? Yes, sir. 2 Yes, is sir. a rational number or not? Yes, sir. Yes. Now you have to tell me only a single rational number that lies between 2 and 3. What is the rational number that lies between 2 and 3? Only one rational number. Jyoti, Yes, sir. what is rational number between 2 and 3? 2 by 5. 2 by 5. okay. Any other? देखो, if 3 by 20. in 4 question by it is 20. given, if in the question 2 divided by 5 क्या वो कटेगा? 0.24. क्या 0.4 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है? No, No, sir. sir. ये कैसे हो गया ये 2 by 5 एक रैशनल Sir, नंबर 5 by 2. जो कि Sir, इसके 5 by बीच 2, में sir. होगा? Sir, 5 by 2 होगा, sir. 5 by 2 तो कितना रेशनल नंबर निकाला? 2.5 क्या होगा? इसके और इसके बीच में होगा. Yes, 5 by 2 Yes, sir. can be a rational number that lies between 2 and 3. Am I right or not, Jyoti? Yes, sir. Okay. But if in the question it is given that you have to find only 1, 2, 3, means number of rational number to be found is minimum, restricted, then we can use the mean method. ठीक है? अगर आपसे पूछता है कि 2 और 3 के बीच में 1, 2 या 3 रैशनल नंबर बताओ, हम लोग क्या करेंगे? मीन मेथड को यूज करेंगे. क्या करेंगे बेटा? मीन मेथड को यूज करेंगे. अगर 3 से ज्यादा, देखो हर एक मेथड को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई दिस ऑल 3 मेथड इन ऑल द केस. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. बट टू सेव योर टाइम, to make your calculation easy, we prefer mean method. कब? जब 2 रैशनल के बीच में 1, 2, 3 कम से कम संख्या रैशनल नंबर बताने के लिए बोला हो, तब हम लोग क्या करेंगे? मीन मेथड को यूज करेंगे. मीन होता क्या है? जैसे 2 and 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, क्या करेंगे? Simply what you have to do? You have to add these two numbers. What you have to do? क्या करना होगा भाई? बोला भी करो ना. Add. ऐड करना किसको? Add इस 2 नंबर 2 को. and 3. When we add 2 plus 3, what will be the result? 5. 5. 5. And divide this number by 2. What I said? इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर जो किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? समझ जो में आया? फर्स्ट नंबर आएगा उसे डिवाइड करेंगे. मैंने क्या बोला? जैसे 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है? सबसे पहले क्या करो? 2 और 3 को ऐड कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो. रिजल्ट क्या होगा? 5 by 2. And 5 by 2 is a rational number because it is in the form of p by q, and p and q are integer, and q is not equal to 0 because 2 is not equal to 0. That means 5 by 2 is a rational number and it lies between 2 and 3. Am I right or not? Yes, sir. All right. Yes, sir. समझ में आया? अब देखो, Yes, sir. अब क्या होगा? 2 और 3 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आया? 5 by 2 आया? Yes, है कि नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हमको बोले
कि 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड करो। क्या करो? 2 रैशनल नंबर फाइंड करो। हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द मीन मेथड। किसके मेथड से? मीन मेथड के हेल्प से। क्या करना होगा? अब देखो, जो 2 और 3 के बीच में पहला रैशनल नंबर क्या है? 2 और 3 के बीच में पहला रैशनल नंबर क्या है? 5/2 5/2। 2.1 हमको पूछ कितना रैशनल नंबर रहा है? 2 2 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 2 पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे? yes sir. नाउ 2 और इसको ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या करना है? 2 प्लस 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? क्या होगा? 9/4 होगा। yes होगा? अरे होगा? नहीं समझ में आया? यस सर होगा। सर कैसे किया नहीं पता चला। देखो मैंने क्या बोला? 2 एंड 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड करो। ठीक है? 2 रैशनल नंबर को फाइंड करो। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। ठीक है? इसमें करना क्या है? इस दोनों नंबर को ऐड करो और इसको रिजल्ट को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है? क्या होगा? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। रिजल्ट क्या होगा? 5/2 5/2। अब देखो 2 और 3 के बीच में कितना रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है? 2। एक रैशनल नंबर मिल गया। yes sir. क्या होगा यहाँ पे? 5/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? yes sir. होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? 2 रैशनल नंबर फाइंड करो। अभी तक तो हमको कितना मिला? एक ही मिला ना। एक और खोजना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? इस 2 और 5/2 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 और 5/2 के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? 2 + 5/2 5/2 और इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर दो 2 से। अब ये कितना होगा? 9/2 2 एलसीएम लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? 4 + 5/2 क्या हो जाएगा? 9/4 होगा। हाँ जी ज्योति कुमारी, Yes, sir. समझ में आया? मेघा, Yes, sir. अविनाश, Yes, sir. हाँ अविनाश, पंडित जी समझ में आया? आया समझ में? यस सर। हाँ जी जय ठाकुर, आया बेटा समझ में? जय समझ में आया? अर्नव किशोर, भारती, Yes, sir. अनीता, आशीष, सर स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा है सर, वो कैसे बताएं? क्या चीज? सर स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा है सर। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है? नेट नो प्रॉब्लम सर। तुम लोग के स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। यस Yes, सर। sir. बेटा आ रहा रिकॉर्डेड है। वर्जन देख लेना। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। आशीष, आशीष रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना। ये चीज समझ में आया सबको? yes sir. क्वेश्चन करो। 6 and 7 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताओ।
ठीक है, यूजिंग मेथड। हाँ ज्योति, Yes, sir. ईयरफोन कान में लगाने के लिए होता है, खेलने के लिए नहीं। इसको होमवर्क लिख लो, ठीक है, स्कूल ग्रुप में करके सेंड करना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, Yes, sir. इरेज कर दे स्क्रीन को, Yes, sir. ठीक है। चलो अभी ये बताओ, इसके बीच में सुनो ना, Yes. चलो ये 2 और 5 क्या है, 2 और 3 के बीच में दो रैशनल नंबर मैंने बता दिया। एक कौन हुआ 5/2, दूसरा क्या हुआ 9/4, तीसरा क्या हुआ ये तुम लोग बता दो, तीसरा क्या हो सकता है? हाँ जी, तीसरा क्या होगा? ज्योति कुछ पूछ रहा हूं, कॉपी कलम यूज करो। अविनाश, दो रैशनल नंबर मैंने बता दिया, 2 और 3 के बीच में तीसरा रैशनल नंबर क्या होगा? हाँ अर्नब, सॉल्व करो। Sir, 17/6. किसने बोला? Mega. 17/6 कैसे की? Sir, ये 9/4 plus 2. 9/4 + 2 Yes, sir. कितना होगा ये? by 2 divided by 2. ठीक है। 10/4. ये कितना होगा? 9 + 8 अपॉन 8 कितना होगा ये? 9 8 17 होता है ना? Yes, sir. 17/8 कैसे आ गया आपको 17/6? Sir, 10/4. हाँ 10/4. मेगा, 10/4. Yes, sir. ये तुमको 17/6 कैसे आ गया? Sir, 10/4. Sir, 4 और 2 को जोड़ दिए थे. हाँ वही 10 वही by जोड़ा ही 4. करो, ठीक है। कैसे जुड़ जाएगा, मतलब तुम लोग को एडिशन नहीं आता है। 10/4 किसने बोला? Sir, हम बोले कैसे किया? सर कैसे किया? इधर कैसे बीच किया? से निकाल। So 17/8. सर 5/2. सर 5/2 + 3/2. ओके राइट, देखो ये भी राइट है और ये भी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 + 6 अपॉन 4 बेटा 11/4 होगा। ये 10/4 कहां से आ गया तुमको? हाँ सर उसी के बीच में आ रहा है सर। अरे 3 × 2 क्या होगा? 6 + 5 11 11/4 होगा ना अर्नव? 10/4 कैसे आ गया? तुम लोग को एडिशन नहीं आता यार, क्लास 8 में हो। हद है यार, तुम लोग को एडिशन नहीं आता है। सर 10/4 भी होगा सर। 2.20 आ रहा है। 2.20 10/4 कैसे किया? सर ऐसे